Hello everyone, it's my pleasure to introduce you very inspiring and the innovative person, Dr. Ritika. Dr. Ritika recently secured the All India rank 33 in CSE 2023. There is a very famous quote, always make your future brighter than your past. This quote is perfectly applied to Dr. Ritika. Dr. Ritika pursued her MBBS from the Government Medical College, Haldwani. Many would have stopped after that, but Dr. Ritika did not. She made her future brighter by deciding to pursue the civil services. She appeared for interview in 2021 but unfortunately could not make it to the final. But in 2022, she finally conquered the UPSC and secured All India rank 186. And then, even after the prestigious post of Indian Police Services, she did not stop. She made her future more brighter by securing her tryst with the destiny, that is All India rank 33. Welcome, Dr. Ritika, and a big congratulations. Thank you so much, sir. Uh, the first question to you, when you got the All India rank 33, what was your first reaction? And secondly, you already qualified the UPSC in 2022, securing All India rank 186. Now you got All India rank 33. So emotionally, which one? When you conquered the UPSC first, or when you fulfill your tryst with the destiny? Emotionally, which one was the important to you? So both experiences were very different. So in 22, when I cleared the exam for the first time, I was at home. So that experience I got to share with my family. My father was there, my mother was there, even my younger sister was there for the time. So that was a kind of emotional connect that you have with your family. You get to see their joy, you get to see pride through them. That was different. But this time I was already in the IPS training. So when we got this result, so we were all at mess, we were having our lunch. So this time I got to share it with my friends. We have this concept of squads basically. That is how we train at the IPS. And interestingly, I was sitting with my squad mates, and somebody, one of my squad mates, he happened to see the result and he brought it to me. This was a different kind of experience. And having to share such an experience with your colleagues, the people who are there with you, and they have also cleared the exam. So they understand the importance of this as well. So that was a very unique experience in itself. Anything interesting that you remember that day? Sometime what happened, Yeah. in the joy we do many things. So anything interesting? You're right. Sometimes in joy we do many things. So I also had that profound moment of joy and excitement, because of which I have forgotten everything I did after getting the result. So मतलब mess में I was there. I had to go and put my plate back, and I thought कि room पे I'll go and I'll call my family. I'll break the result to them. So after that, I met so many people consecutively. Everyone is congratulating you. You have other friends also given the exam. You ask them कैसा रहा. But in that खुशी वाला moment ना, you forget वो इतने सारे हाथ शेक करे, इतने सारे लोगों को thank you करा. तो वो इतना blur है. It is just I have forgotten the events, but I remember the joy. So that was a very different experience all in itself. Is life change for you after securing the All India rank 186 in 2022? Actually, life, I think, changed when I started preparing for the exam itself. See, I was a working doctor before. I wanted to study at home. So I kind of gave that up. Abhi, let's take a break from that. And I started preparing. So initially, it is a lot of isolation till the subjects start to develop. और फिर वो mind में subject ही इतना चलने लगता है that you forget कि आप अकेले भी हो और आप पढ़ाई कर रहे हो. It is always like आपने GS में कुछ पढ़ा तो theory घूम रही होगी. Then you study something else, वो चल रहा होगा. So eventually ना I was able to feel that mind एक तरह से broaden हो जाता है. So I could feel smarter कि मेरे को इतना सारा आता है, इतना सारा knowledge है. मतलब MBBS को 6 साल दे दिए और इसमें अब इतनी जल्दी ऐसा लग रहा है कि suddenly you're so much more aware. Life began to change there. And it was a long journey if you see, because preparing itself takes 1.5 years before you start giving the exam. So उस time पे I did a lot of self work.
I worked on myself, discovering my strengths, weaknesses. तो हम कहते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस, so that self awareness came, and I think वो जो उस टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस आ गई, that is the best thing that happened throughout because of this UPSC exam. Interesting. Now, as you said, you did the MBBS from the Government Medical College, Haldwani. Many would have stopped. So, what factor forced you to, again make your career more brighter or to prepare for the civil services? What actually motivated you? So after I did my MBBS from a government college, we have this thing that government doctors usually we go and serve in some rural hilly areas. So I got this opportunity through my college to go to a community health center. Now in rural areas when you go, you realize that mostly you would think from the outside कि डॉक्टर नहीं होते, बट इवन जब डॉक्टर होते हैं देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. कई बारी जो पेशेंट्स है वो विलेज से आ नहीं पाते क्योंकि रोड्स आर नॉट लाइक दैट, इट इज़ इनएक्सेसिबल, हिली एरियाज रहते हैं. समटाइम्स यू फील कि यू वांट टू गिव अ मेडिसिन बट वो मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है, वो आने में इट विल टेक वीक्स. सो यू रियलाइज दैट द सिस्टम इज वेरी वेल डिजाइंड, इट्स नॉट फंक्शनिंग दैट वेल. Okay. And even a very good doctor who might want to give their services there, हो सकता है स्पेशलिस्ट आ जाए, सुपर स्पेशलिस्ट आ जाए, वो कभी ही विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस. मतलब वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा. तो फिर मतलब इतना पढ़ाई करके हाउ डू यू डिलीवर, है ना? इट इज नॉट जस्ट कि सोसाइटी को कैसे डिलीवर करोगे, आपने इतनी मेहनत से इतना कुछ सीखा, वो कैसे प्रैक्टिस करोगे. सो हाउ डू यू ग्रो इन योर करियर. So one of the things is आप सिटी में ही रहना कर दिए प्रेफर एंड यू डोंट गो टू दीज एरियाज, बट देन हाउ विल दे डेवलप. और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता है दैट वी आर टर्शरी सेंटर, सो मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स कम फ्रॉम दीज रूरल एरियाज. सो इवेंचुअली आई हैड डेवलप्ड दिस बॉन्ड कि इनके लिए करेंगे तो इट इज़ मच मोर रिवॉर्डिंग, है ना. हमारे जो एलीट लोग हैं उनके पास तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बट दीज पीपल दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़. तो इनके लिए कुछ करते हैं एंड through that we'll grow in our career also. It is a very unique experience. So उसमें नहीं हो रहा था PHC CHC itself से, तो फिर कोरोना आ गया. Corona did expose a lot of lacunae in the healthcare system, and I think that is a time when we realize even private healthcare by itself is not enough. Government भी चाहिए, private भी चाहिए, combined तरीके से preventive health भी चाहिए. So you have to get into policy making if you have some interest. Now, interestingly, I thought कि this is something I'll do well in. तो मेरे को लगा कि अगर मैं इस दूसरे तरह से करूँ कोशिश ना, instead of just delivering services, what if I was in policy making and making sure कि those services can reach people. तो एग्ज़ाम का तो मोस्टली पता होता है, मुझे भी ऊपर से पता था. तो then lockdowns happened, so I thought कि let's take this as an opportunity and let's start preparing. That's very touching first and very insightful. I hope many more like you, who really want to work for the betterment of the people, come and join the civil services. Obviously, India needs people like you. Thank you. And that is why I guess you are there. Fine. Thank you. Now, Dr. Ritika, you have cracked this exam twice. You secured the All India rank 186 in 2022, and then you secured the All India rank 33 in 2023. Yes. Right? Now, what was your success mantra first? Obviously, you definitely have certain thing important in you that differentiate you from the others. So what do you think, what is your success mantra that really worked in the UPSC? I'll give you two things here. First, I think we briefly touched on that I was well aware of my strengths and weaknesses beforehand. Like I knew कि आंसर राइटिंग इज समथिंग आई विल बी गुड एट, लेकिन प्रिलिम्स के जो MCQ सॉल्विंग है वहाँ पे आई वॉज गेटिंग मोर कन्फ्यूज इजीली. तो आई न्यू कि अच्छा ये मेरे को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, आंसर्स मैं खुद से भी बना लूँगी, आई विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट ऑन माई ओन, बट प्रिलिम्स के लिए मेरे को ज़्यादा मेहनत चाहिए. तो ऐसे अगर पता रहता है ना, सो देन यू डोंट हैव टू फॉलो अ सेट पैटर्न कि 2 महीने प्रिलिम्स करेंगे, फिर 4 महीने ये करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे. यू ऑलरेडी नो मैं इसमें अच्छी हूँ, तो जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे. सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आई रियलाइज अर्ली ऑन कि इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एज इन आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी लिख रही हूँ मतलब वो मैं बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी कर रही हूँ, एंड
all my strategy is very well, very good. It is going to work for me. क्योंकि if I start self-doubting, तो instead of performing, instead of जो मेरे को आता है वो वहाँ लिख पाना, I'll keep thinking कि शायद ना मेरे resources कम है. Now what happens is, some topper talk I was watching and they very well put it. उन्होंने कहा कि prelims में हर किसी को 100 में से 30 ही क्वेश्चन आते हैं. तो क्या होता है अगर ये मैं सोचती नहीं ना ऐसा कि यार 30 आता है बहुत है, बाकी हम तुक्के मारेंगे, और उसके अलावा अगर मैं ऐसा सोचती कि यार मुझे 30 ही आते हैं, मुझे और पढ़ना चाहिए, मतलब 80-90 मेरे को आने चाहिए, तो आई वुड गेट इनटू दिस साइकिल कि बस पढ़ाई हो रही है और आउटपुट नहीं आ रहा है. पर इसमें यह है कि अगर कम भी पढ़ा है तो स्मार्टली पढ़ना है, उसको आउटपुट में लेके आना है. अब एमसीक्यूज आते हैं प्री में, तो यू हैव टू नो हाउ टू एलिमिनेट एंड डू इट. यू विल नेवर नो ऑल द आंसर्स. इवन जो हमें आता होता है ना, मान लीजिए यूएन पे क्वेश्चन आया, मेरे को पक्का पता है वो वाला, इवन देन 4 में से 2 ही ऑप्शन आते होंगे, वो 2 तो कुछ ऐसा होगा ही जो नहीं पता. सो उसमें भी थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो तभी आता है व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं तुक्का मारूंगी तो सही होगा. सो देन यू गो एंड यू डू इट. अब मेंस में भी ऐसे ही होता है. सपोज मान लीजिए कि GS1 अच्छा नहीं गया और आपको फियर आ गया कि यार मेरा सुबह अच्छा नहीं हुआ है, वो शाम का पेपर भी आप खराब कर दोगे. सो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ है तो शायद सबका ही नहीं हुआ होगा, पेपर ही ऐसा आया होगा, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, GS2 में कर लूंगी कवर. तो समटाइम्स यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. डर तो सबको ही लगता है, बस उसको फील नहीं करना है, उस प्रेशर में नहीं आना है, बिकॉज इट इज एन एग्जाम ऑफ लास्ट मैन स्टैंडिंग. तो आपको कभी भी गिरना नहीं है ये सोच के कि मेरा खराब हो गया पेपर. आपको लगना चाहिए कि नहीं, मुझे आता था, तो मुझे आता है वो बेस्ट आता है, और मुझे नहीं आता तो बहुत लोगों को नहीं आता होगा, हो जाएगा, देख लेंगे, एंड यू कीप गोइंग. So I guess you made 2 very important point. First, an aspirant should have the idea about his strength and the weakness. Yes, sir. Okay, and accordingly he need to devise his strategy. Yes. Second, he need to be confident. Yes. Right. Again, as whatever you said on that question itself, you never failed in the preliminary. You gave 3 attempts. You never failed in the preliminary. Yes, sir. And if I recall correctly, you just had around 5 to 6 days in CSE 2023 preliminary. So how you made that possible? Within such a small, short span of time, how you cracked? What was your strategy to crack the preliminary? Obviously, preliminary is going to come, and it is going to be very, very useful for the aspirant who going to appear. Yes, sir. So like you pointed out, the CSE 22 result had come. I got All India rank 186. तो उस टाइम पे 2 थॉट चले पहले तो कि दोबारा देना है कि नहीं देना. प्री तो भरा होता है, Many people. बट देन यू थिंक कि ऐसा ना हो कि ना आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो एक अटेम्प्ट खराब हो जाए, अगली बार दे दे क्या. सो दैट थॉट ऑल्सो केम. बट लाइक आई सेड कि एक कॉन्फिडेंस था कि दे देते हैं, फिर जो होगा देख लेंगे, लेट अस जस्ट डू इट. और फिर रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि हो जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, वील गो एंड वील स्टार्ट द सर्विस. तो इस कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दिया कि 5 दिन है तो लेट्स जस्ट डू सम रिविजन, क्योंकि 5 days में there's nothing much to do. और रिविजन में भी आई थॉट कि मॉक्स कर लेते हैं, PYQs एक बार थोड़ा सा लगा लेते हैं, एंड उस सेंस में ये रहेगा कि आई विल काइंड ऑफ रिवाइज हाउ आई यूज्ड टू सॉल्व द MCQs, बिकॉज MCQs हैव दिस ट्रिक काइंड ऑफ कि आपको पता चल जाता है, अच्छा आप एलिमिनेट करते हुए चलते हैं कि ऑप्शन A तो नहीं हो सकता, अच्छा C भी नहीं हो सकता, तो फिर B and D में से क्या प्रोबेबली सही लग रहा है. देन यू थिंक कि इंग्लिश में तो नहीं खेल गए, सो यू अगेन रीड दोस कि यही हुआ होगा कुछ. तो ऐसे करते करते ना तो थोड़ा सा हैबिट सी रहनी पड़ती है उसकी. तो इसलिए बस इतना ही किया, एंड आई वेंट एंड आई गेव दैट एग्जाम. तो इसमें ये है कि जो पुरानी प्रिपरेशन है ना, द फाउंडेशन दैट यू बिल्ड, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इट इज नेवर गोइंग टू हैपन कि लास्ट पे आप अचानक से आप कर थोड़ा सा 5 दिन पढ़ लो और हो जाए. ये अच्छा है कि पहले काफी तैयारी की हुई थी तो वो आ जाती है याद फिर एग्जाम में. अच्छा, इस बार प्रीलिम्स आल्सो सीम्ड वेरी डाइसी. उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी, मतलब इतने शॉर्ट स्पैन में क्रैक करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. यस सर, आई गेस आई कैन फील इट. यस सर, नो इट इज. एंड इफ यू आस्क मेनी ऑफ दोज पीपल ना जो बॉर्डर पे छूट गए हैं कि क्या गलती हो गई, आई थिंक मोस्ट विल टेल यू कि सिली मिस्टेक हो गई. ये नहीं कहेंगे वो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था. दिल से नहीं, मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता ना, या थोड़ा मेरे को प्रेशर नहीं फील होता तो मैंने कर लिया होता सही.
कई बार ऐसा होगा कि आप घर पे बैठ के कर रहे होंगे तो आपका स्कोर 80-90 आ रहा होगा, वही स्कोर उसी पेपर का एग्जाम हॉल में 60-70 हो जाएगा. So that is all pressure. So not to take that pressure is what this game is about. Okay. And that is what I think even the job is about. Civil services में भी pressure रहेगा, लेकिन वो correct mindset के साथ decision make कर पाना, तो that is what it is about. वो थोड़ा सा अपने आप को train करना पड़ेगा घर पे, तो आ जाएगा. इसमें एक सवाल जो बार बार हमें बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे प्रिलिमिनरी में सर हम 2 तो एलिमिनेट कर देते हैं लेकिन 2 में फंस जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ टिप्स अगर बच्चों को मिल जाए तो आई गेस उनका काफ़ी भला हो जाएगा. I also learnt this from जो tips and tricks YouTube वीडियोस में आते हैं. Something very nice was said and they said कि मान लो आप 2 आपने एलिमिनेट कर दिए और फिर आपको तुक्का लगाना पड़े, मान लीजिए कि बिल्कुल ही नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी सेज कि आप लगा लो, एंड अगर 50-50 भी हुआ है ना, मान लीजिए 5 सही हो गए 5 गलत हो गए, बिल्कुल एब्सोल्यूट तुक्का था, तो भी पॉजिटिव ही स्कोर आएगा, क्योंकि इट इज लाइक दैट ना, +2 माइनस, तो फिर तुक्का लगा लेना है. इफ यू आर नॉट एबल टू गेट से 85 क्वेश्चन तक मैं करने का सोचती थी, तो अगर रह रहे हैं तो फिर तुक्का लगा लिया. बट कैलकुलेटेड भी है इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन ये है कि थोड़ा सा ऐसा सोच लेना है कि मान लीजिए 2 ऑप्शन तक आप आ गए, अगर कहीं ईयर दिया हुआ है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, तो यू कैन काइंड ऑफ ब्लाइंडली से कि यही गलती हुई होगी, उसको हटा देते हैं. और जो चीज रीजनेबल लगती है ना, एक बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट वो रीजनेबल लग रहा है कि लाइक कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए यूएन का, इट वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ समथिंग, तो आप मान सकते हो कि आपको नहीं पता कि वो वेलफेयर उसका करता है कि, लेकिन कभी तो किया ही होगा, उसकी कोई तो ऐसी स्कीम होगी जो कहीं से इनडायरेक्टली वेलफेयर करा रही होगी. तो ऐसा हम ऐसे वाले स्टेटमेंट्स को सही ही मान के चलते हैं. तो लाइक दैट देयर आर सम वेरी सिंपल स्ट्रेटजीज व्हिच आर आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, टिप्स एंड ट्रिक्स, बट यू विल आल्सो इफ यू डू द PYQs ना, यू विल अंडरस्टैंड कि यूपीएससी हैज दिस पैटर्न. वो सिर्फ कुछ ही चीजें जो गलत प्रिंट कर देता है, बाकी दे हैव कि वो सिंपल चीजों को सिंपल ही छोड़ देंगे, और उन्हीं को ना हम गलत समझ लेते हैं कि ये तो मैंने सुना नहीं है. जैसे ड्रोन्स का यूज हो रहा है टू मेजर, मान लीजिए कितना ऑक्सीजन लेवल है अबव द सी, तो आप कहोगे ये तो होता नहीं होगा, बट यू कैन प्रिज्यूम कि कहीं तो किसी ने किया होगा, या कोई तरीका तो होगा ना ये करने का, तो उसको सही मान के चलना पड़ता है. सो वेरी नाइसली पुट. आई गेस अगर 2 में फंस रहे हैं तो कुछ फॉर्मूलाज हो, उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है. वी कैन नॉट से कि हमेशा वो राइट होगा, बट एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली यू विल बी इन पॉजिटिव. Yes, sir. Okay, fine. As far as your answer writing is concerned, what I remember is you was the innovative. You experimented a lot first, and second, you are very critical person. Means to say, if somebody give you out of 10, 7 marks, and you think that you deserve only 5 marks, and you will not be happy. Ki why he had given me 7 marks. Right. So, I mean, what do you think the critical thinking and the innovation role in the mains answer writing? How much role they play? And any strategy for mains answer writing? Because you experimented a lot. You innovated a lot. Right? So, I'll tell you what I did. Because I had given 3 mains. So, every time I thought कि शायद if I change the way I write my answers, तो some score will increase. Because हर time almost similar ही आता होता है. Questions अगर 20 आ रहा है तो मान लो 12-30 यू नो वेरी वेल, नेक्स्ट 3-4 यू नो लिटिल बिट बेटर, और कुछ बिल्कुल भी नहीं आते होंगे. सो आई थॉट आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी बदल के देखते हैं. सो फर्स्ट टाइम आई यूज टू राइट आंसर्स, जैसे आई हैड डन दोस टॉपर आंसर राइटिंग कॉपीज विच आर फ्रीली अवेलेबल, तो वहाँ से मैंने सीखा था थोड़ा सा कि एक हेडिंग दे दिया, 7-8 पॉइंट लिख दिए, इवन 1 लाइनर पॉइंट्स आर ओके. तो उसमें आई रियलाइज कि आई वॉज गेटिंग अराउंड 400 इन GS. सेकेंड टाइम आई थॉट कि इसको बेटर करने के लिए डायग्राम वगैरह डाल देते हैं, फिर वो वैसे ऐड किया. थर्ड टाइम आई अगेन चेंज्ड इट एंड आई थॉट कि आई विल पुट लेस पॉइंट्स बट आई विल एक्सप्लेन देम वेरी वेल एंड आई विल मेक इट लुक मच ब्यूटीफुल. जैसे हेडिंग्स को बॉक्स में डाल दिया, फिगर को बॉक्स में डाल दिया, नंबर ऑफ फिगर्स कम कर दिए, ओनली वेयर नेसेसरी, बिकॉज नाउ आई वाज राइटिंग लॉन्गर पॉइंट्स ना, तो आई हैव टू मैनेज टाइम ऑल्सो. सो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड तीनों बार में GS का स्कोर हैज बिन कंसिस्टेंट. सो लेट्स से 400 से 410 के बीच. नाउ व्हाट दिस रिवील्स इज कि एज लॉन्ग एज योर आंसर्स आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो एग्जामिनर सेम मार्क्स देते हैं. तो आपके आंसर राइटिंग का तरीका, मतलब क्या कौन सा आपको नेचुरली आता है वो ले लो,
उस पे ही काम करो. डोंट अननेचुरली ट्राई टू राइट मैकेनिकल आंसर्स. कई बारी जो हम सोचते हैं ना कि अगर टॉपिक का ऐसा है तो ऐसे ही लिखना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है. वट एवर सूट्स यू, इफ यू राइट तो यू विल गेट गुड मार्क्स एज लॉन्ग एज वो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देता है. You said कि I am self critical, तो yes I am self evaluative. तो what I did was I wanted to see कि मेरा natural flow किस तरह से आता है answers में, because that saves a lot of time. तो पहले I used to put data in introduction because ऐसे मैंने सुना था कि ये अच्छा रहता है, बट वो मेरा natural flow way नहीं था. तो उसमें ना I used to take a couple of seconds सोचने के लिए इसमें कौन सा डेटा डालूँ, फिर conclusion में सोचने के लिए कि forward looking कैसा बन पाएगा, क्या क्या मेरे को इसमें innovative देना चाहिए. तो it was wasting my time a little bit. So this time I changed all that. I thought कि मेरा flow आता है if I write descriptive answers. So I tried to do that only. That saved me a lot of time. So उससे ये हुआ कि after my paper was done I could go through it. और अगर कोई एक दो आंसर ऐसे है ना जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, so now I had 10 minutes and just 1 or 2 answers to do. So I could justify that also. कि मेरे को जो अच्छा नहीं आता उसके लिए मेरे पास enough time है. I'll come up with a nice answer for that also. तो ठीक है, whichever way works for you. बस ये है कि नेचुरल फ्लो में इफ यूल राइट तो यूल राइट नीटर ऑल्सो, क्योंकि अब लास्ट पे जल्दी तो मचेगी नहीं आंसर फिनिश करने की. सो यू कैन प्रेजेंट इट मच बेटर एंड दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड. Again, coming back to the same basic fundamental, know your strength and your weaknesses and work according to your strength and the weakness. yes right? yes. जो आपका अच्छा है ना, सपोज आपके इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बनता है, लाइक यू हैव दैट फ्लेयर, जैसे ऐसे में बहुत अच्छा लिख लेते हो, तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दो. जरूरी नहीं है कि उसको एक लाइन में ही खत्म कर दे या 2 लाइन में, टेक 3 लाइन्स. तो वट एवर इज गुड फॉर यू. अगर आपके डायग्राम अच्छे हैं तो आप डायग्राम अच्छे बना दो, क्योंकि आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप काफी अच्छे फ्लो चार्ट बना लेते हो. सो एग्जामिनर विल गेट अ हिंट कि क्या लिखना चाह रहा है. सही सही लिखा है तो सही सही मार्क्स देता है वो. Any practice you make for intro, we always say na intro is the first impression, conclusion is the last impression. So any strategy you adopted for intro and conclusion? I had my strategy, so maybe it will not work for all. But what I used to do was intro में I will have a clear idea of पूछा क्या है, and I'll take the keywords and I will try to explain कि अच्छा ये इसको ऐसा पूछना चाहता है and this is where I'm going to take my answer. So it will be a kind of description on those keywords only. So suppose I'll give you an example. The question is कि what is the impact of global warming on coastal cities of India? So now I know कि coastal cities and global warming है. So then I might just say कि global warming as shown by this data, if I have that data, is happening at this rate and this is going to impact Indian coastal cities especially, and then I'll say like especially in Tamil Nadu, Gujarat and this. So now I know कि यहाँ जा रहा है. By having impacts on economy, social life, causing habitation problems in the following ways. तो मैंने ये भी बता दिया कि मुझे coastal city पता है, मुझे global warming का भी आइडिया है और ये इम्पैक्ट आने वाले हैं इसमें. I have given dimensions. हाँ, so now introduction itself से उसको समझ आ गया कि अच्छा 2-4 चीजें ये ऐसे आने वाली आंसर में. तो देन आंसर में उसको elaborate कर देंगे and then conclusion में ऐसे summarize it कि therefore you know such impacts can be mitigated by say strategies from the government along with the contribution of public, जो भी ऐसा आएगा, and then we'll conclude it, ताकि कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि हम क्वेश्चन से डाइवर्ट कर रहे हैं. तो जस्ट कंक्लूजन एंड इंट्रो से इतना पता चल जाएगा कि हम टू द पॉइंट रहे हैं, हमने मतलब बीट अराउंड द बुश नहीं किया है. Great. One thing about you, you are very confident. Yes. First and second, you innovated a lot. So what is the role of confidence and the innovation in the civil services examination? According to what you want to advise to the aspirant, because many aspirants they do not feel confident. So I think that is where we lack. Because when we are not confident, we don't want to try something new. We want to do what everyone else is doing. कि अगर everyone is using a blue pen and say a pilot pen, तो मुझे भी उसी से लिखना है. And हो सकता है कि because of that gel pen आप पेपर ही फिनिश नहीं कर पा रहे हैं. But you are so scared कि अगर मैं बॉल पेन से लिखूंगा तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, that you are not even changing it. तो यही है कि don't be fixed in your ways. एंड उसी के लिए जरूरी है कि आप इतना तो कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जो मैं कर रहा हूँ मैं बेस्ट कर रहा हूँ टू माई केपेबिलिटी. इट डजंट हैव टू बी कंपैरेटिव कि उसने कितना पढ़ लिया है या किसी और ने कैसा मार्क्स आए पिछली बारी, बिकॉज
In the exam, it is just about how well you are presenting your answer. And वो ये ना कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लोगे तो उसका एक फिक्स्ड आंसर तो हो ही नहीं सकता. जैसे वी जस्ट डिस्कस्ड क्या इम्पैक्ट है. हो सकता है कि आई जस्ट कवर्ड 3 डायमेंशन, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल. somebody else might say कि कुछ और डायमेंशन ले आए. सो एवरीथिंग इज ओके. बस आराम से रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एग्जाम में मैनी टाइम्स इन द हॉल सम थिंग्स ना डोंट गो राइट. जैसे एक बार हमारे यहाँ लाइट चली गई थी एंड बड़ी गर्मी सा था माहौल, एकदम सितंबर वाला एग्जाम था. इट वाज वेरी हॉट, इट वाज ह्यूमिड एंड द लाइट हैड गॉन, ठीक से दिख भी नहीं रहा है. सर्टेन कैंडिडेट्स ना दे स्टार्टेड टू पैनिक कि सर कुछ, सर विंडोज खोल दीजिए सर. मतलब वो सब सोचना ही नहीं है उस वक्त. बिकॉज इवन इफ इट वेस्ट से 3 minutes और 2 minutes ऑफ योर टाइम, नाउ द फ्लो ऑफ आंसर इज गॉन. तो कम से कम एक आंसर तो आप उसी में खराब कर दोगे. Absolutely. So it is very Perhaps that matter as well. Yes, it is going to matter. तो जैसे महाभारत में बोला गया ना कि अर्जुन की तरह आपकी निगाह से. हाँ बिल्कुल right? बिल्कुल. Yes sir. Very good. Now coming to your optional anthropology. So why you opted for anthro first? Second, what was your strategy for anthro? Particularly in the paper 1 where you scored very brilliant mark 161. Yes. Very few people got that much of the mark because paper 1, if I recall, was very tough. So what was your strategy with respect to the anthro, particularly paper 1, and why you opted for anthro? Sir, in medicine we have a subject, it's called PSM, Preventive Social Medicine. And there we kind of touch upon certain aspects of anthropology, like say the impact of culture on health and how social customs affect nutrition and all that. So I was aware of anthropology for a very long time. And when I started to decide कि अब कौन सा optional लेंगे, तो medicine I had studied for a very long time. I wanted to try something new. Anthro was in vogue also उस time पे. बहुत अच्छे अच्छे toppers गए थे anthro से. And then I knew कि ये मेरे से subject से काफ़ी related है. इसमें physical anthro है, biological anthro है, तो ये सब आता है काफ़ी हद तक. Diagram भी science student है, बना लेंगे. So with that mindset I started to read. And if you know anthro, you will know it is a very holistic subject. And it has something for everyone, चाहे किसी भी background से हो आप. ठीक है, तो आप आर्ट्स के होंगे तो भी आपको इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अपने लिए. तो वह पढ़ना शुरू किया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. देन व्हेन आई स्टार्टेड टू डू इट, तो पहले तो थोड़ा स्ट्रैटेजी नहीं होती है. आई हैड ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ टॉपर्स से, ये वाली बुक. आई स्टडीड द सेम, सारी बुक्स पढ़ ली एक बारी 2 बारी, तो सब्जेक्ट समझ में आ गया. बट अब क्या है कि आई वॉज नॉट गेटिंग समबडी एल्स टू इवैल्यूएट दोज आंसर्स, तो आई वॉज इवैल्यूएटिंग इट माई सेल्फ. तो दोनों बारी ना बहुत अच्छे नंबर नहीं आए एंथ्रो में, 21 ऑल्सो एंड 22 ऑल्सो. आई थॉट कि मेरे को आता भी है सारा, मतलब ऐसा नहीं है कि आई कैन स्टडी मोर तो कुछ नया कंटेंट लिख लूँगी. तो देन आई रियलाइज कि कुछ इसमें समथिंग इज ऑफ. सो दिस टाइम व्हाट आई डिड इज आई वेंट टू अ टीचर फॉर दिस. सो ऑनलाइन ओनली आई टुक आंसर राइटिंग प्रोग्राम. एंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट, तो ही जस्ट करेक्टेड वन थिंग. मतलब होता है ना, टीचर ही पकड़ सकता है कभी कभी कोई गलती ना. So only one thing he corrected. He said, "This is not science. This is like arts. Don't write it like science." अब मैं मेडिकल बैकग्राउंड क्यों, मेरे को तो वैसे याद आता है साइंस की तरह. इसे नहीं, इसको आर्ट्स की तरह लिखो, इसको डिस्क्रिप्टिव लिखो, इसमें थोड़ा बड़े इंट्रो दो, थोड़ा बड़ा कंक्लूजन दो, ऐसे पॉइंटर मत बनाओ. नाउ दैट स्ट्रैटेजी हैज वर्क फॉर लॉट ऑफ टॉपर्स. ऐसा नहीं है वो काम नहीं करती. बट आई थिंक लाइक आई सेड ना कि मेरा नेचुरल जो है टेंडेंसी वो डिस्क्रिप्टिव है, तो मेरा उस दूसरे फॉर्मेट में अच्छा नहीं प्रेजेंट हो रहा होगा आंसर. So once he corrected that, then there was no looking back. मतलब सारे answers समझ आ रहे हैं, अच्छे flow में आ रहे हैं. And once you see that flow in the answers, तो naturally there's a structure to the answer. और वो structure के बहुत बहुत points हैं उसके काफ़ी marks हैं. Because paper 1, like I said, इस बार ही थोड़ा सा unconventional था. तो पहले तो बस PYQ based आता था, अभी थोड़ा सा हट गया पैटर्न से. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई हैड अ स्ट्रक्चर टू दोज आंसर्स. तो एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है, देन 2-3 पॉइंट्स ही लिखने रहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना और कनेक्ट करना होता है. वो तभी हो सकता है जब आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट हो विद द सब्जेक्ट, है ना. अगर आपको सब्जेक्ट को लेके ऐसा लगता है कि मतलब मैं थोड़ा आउटसाइडर फील करती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड का नहीं है बिल्कुल ही, तो यू विल नेवर बी एबल टू हैव दैट कंफर्टेबल राइटिंग का तरीका. सो सब्जेक्ट को अंदर से घुस के समझना ओनली फॉर ऑप्शनल, नॉट फॉर जीएस इतना ज़्यादा, बट ऑप्शनल के लिए बहुत ज़रूरी है. एक बात है बहुत पॉपुलर रहती है कि जैसे पेपर फॉर एग्जांपल टफ आया, तो इसमें
इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क नहीं आएंगे। एक फॉर एग्जांपल जैसे एंथ्रो का पेपर इस बार पेपर 1 टफ माना गया, बट यू गॉट 161, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट लाइन? जैसे एस्पिरेंट बोलते हैं कि पेपर टफ आया था सर, परहैप्स इसमें नंबर नहीं आएंगे। यस यस, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? आई थिंक ऑप्शनल में योर ना, एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन बोथ। I think optional में what mistake I have also done पहले, which I did not do this time, is how you choose your question. तो earlier I used to think कि जो best आता है मेरे को वो तो attempt करना ही है, because only then will the examiner know कि कितना in depth इसको पता है। मतलब उसमें मैं काफ़ी quotations दे सकती हूँ, उसमें मैं पता नहीं कौन कौन से author and book का डाल दूंगी। पर उसमें क्या होता है ना, मान लो 2 बहुत अच्छे आते हैं और एक थोड़ा थोड़ा आता है, that is where you at the end up losing marks. उससे अच्छा है 3 एवरेज वाला जो क्वेश्चन था ना, तीनों आते थे, थोड़े थोड़े आते थे, डिसेंट लिख लूंगी, वो करना ज्यादा अच्छा है देन वो वाला अटेम्प्ट करना जहाँ पे एक में आपको शक है। बिकॉज चाहे कितना ही एक्सेप्शनल लिखा हो तो ऐसा होगा कि से 15 में से 8 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे एक्सेप्शनल को। लेकिन अगर कोई बेकार लिख दिया तो उसमें एक ही नंबर आएगा, तो वो ना कॉम्पनसेट नहीं होता, वो फिर निगेट हो जाता है। तो सच है कि जो समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्डिंग्स ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ प्लेइंग विद दैट। अब ना वो सीधे सीधे नहीं पूछेंगे कि मीजोलिथिक में कौन से टूल है, नाउ दे विल नॉट इवन से मीजोलिथिक, दे विल से उस एरा में जब वो वाला निएंडरथल रहता था। आपको खुद सोचना है, अच्छा मीजोलिथिक की बात हो ये शायद, तो कुछ ऐसा रहता है ट्विस्टेड सा। यस, ऐसा रहता है आजकल। तो आराम से सोचो, जो क्वेश्चन पक्का पता है कि आता है, चाहे एवरेज ही आता हो, वो वाला कर लो। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। यस, इसमें यू डोंट हैव टू, वो होता है ना ग्रीडी नहीं होना कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, मैं तो ये तो मैं करना ही है। और यूपीएससी ग्रीडी कहती है। हाँ, दैट इज वेयर वी स्लिप, दे विल गिव 1 वेरी गुड क्वेश्चन एंड 2 बेकार के साथ दे देंगे। सबसे पहला वाला सबसे अच्छा दिया होगा, तो आपको लगता है कि इसमें तो बहुत स्कोरिंग है, इसमें तो बस वो बना दूंगी, ये लिख दूंगी। दैट्स हाउ यू लूज। बच्चों को बहुत काम आएगी, लेट मी टेल यू, बिकॉज जो मतलब मुझे भी 1 डिकेड के ऊपर हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, बट ये चीज़ आज तक वो पकड़ नहीं पाए कि पहला क्वेश्चन यूपीएससी बहुत सिंपल देता है, एंड देन बच्चों को लगता है कि ये तो मैं, इसको तो मैं 20 आउट ऑफ 20। हाँ, एंड देन वो लालच में देन पता चलता है कि अच्छा अच्छे नंबर नहीं आए। एंड पता है, वी रियलाइज इट आल्सो ड्यूरिंग पेपर। फिर जब वो लिखने लगते हैं ना, तो लगता है मैंने गलत उठा लिया, जब कंटेंट नहीं आता कि मैंने बहुत गलत उठा लिया, बट बाय देन और फिर क्या होगा ना, योर कॉन्फिडेंस विल गो डाउन, और फिर उसके नेक्स्ट वाला जो आता होगा वो भी नहीं हो पाएगा। यस, तो इसलिए पहले थोड़ा टाइम ले लो। इफ यू नीड मोर टाइम टू सिलेक्ट द आंसर, टेक 10 मिनट्स, इट्स ओके, बट कॉन्फिडेंस के साथ वो वाला ही उठाना है जो सारे आते हो पार्ट्स। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। ना एथिक्स पे आ जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एथिक्स को लेके दे आर वेरी कंफ्यूज, particularly for you, you improve your score from 104 to 121 Yes, sir. This year. So what was your strategy, and what you will advise to the aspirant how to prepare the ethics? Ethics paper, I'll tell you what I did different, and then I think that this is also something that is, that everyone should do. So I used, most of the important difference comes here in the case study part. Because case studies ना earlier I used to do in a very tabular सा manner. तो सही होता है कि points तो सारे लिखे होंगे कि मतलब इसमें case 1 option 1 में जो है honesty दिख रही है, second वाले में जो है कुछ ऐसा दूसरी quality दिख रही है, लेकिन वो बहुत मैकेनिकल लगता है कि आपने एक ऑप्शन दे दिया ना, आपने कह दिया दिस शोज ऑनेस्टी ऑन माई पार्ट, तो वो ठीक है, आपको सबको पता है कि उतनी ही वैल्यूज है 10-12 जो घुमा के आती हैं, पर उससे आपका माइंडसेट नहीं पता चलता। उससे अच्छा व्हाट आई डिड वाज कि अब ऑप्शन को पैराग्राफ में लिख लेंगे, ऑप्शन 1 लिख दिया, देन उसको थोड़ा सा पॉइंट बना के सुंदर से लिखेंगे, लेकिन आई राइट इलैबोरेटली। तो आई से कि दिस शोज ऑनेस्टी ऑन माय पार्ट बिकॉज इट अलाउज मी टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सेकेंड में आपने लिख दिया कि सपोज कोई ब्राइब टेकिंग पे कि दिस जो है इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मॉरल कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी, रादर देन जस्ट राइटिंग 1 पॉइंट कि इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, आपने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो उससे क्या लगता है कि अच्छा पॉइंट तो उसको पता ही है कि कौन सा वाला वैल्यू इसमें आ रहा है, बट उसको ये भी समझ है ना, एक होता पता है कि समझ है, इसको समझ है अपनी बात की कि ये जो है इस चीज का कितना इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, या किस तरह से जो है ये ऑनेस्टी दिखा रही होगी ये वाला ऑप्शन। तो उसी के मार्क्स से काइंड ऑफ, क्योंकि एथिक्स पेपर कोई ऐसा थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं,
एथिक्स पेपर दे हैव काइंड ऑफ ट्राइड टू गिव अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पेपर ईयर की, तभी वो केस स्टडी देते हैं कि प्रैक्टिकली आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो उसमें जरूरी है कि आप थोड़ा सा उसको लंबा करके लिखो, और तभी उसमें वो पेज भी 4-5 दे रखे हैं उन्होंने, वो 4-5 पेज भी तो भरने हैं। तो उसको थोड़ा सा फैला लो, उसको अच्छे से लिखो और समझा दो अपने पॉइंट को। एंड उसके लिए आई होप दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स हु आर कमिंग एंड राइटिंग दिस एग्जाम दे एक्चुअली हैव सम एथिकल वैल्यूज, because if you do तो you will find it very easy to write that paper. I agree, particularly to give the examples. To give the example, yes. Okay. एक एथिक्स को लेके बच्चों में एक बात होती है कि सर पेपर बहुत लेंदी होता है, पहला। दूसरा, हाउ टू मैनेज द टाइम बिटवीन द केस स्टडीज एंड द थ्योरेटिकल पार्ट, इन एनी योर इनपुट ऑन दैट? So if I remember right, और सबसे लास्ट में होता है, सबसे लेंदी पेपर सबसे लास्ट में। अच्छा है वो लास्ट पे, बिकॉज उसके बाद फिर दूसरे पेपर में हाथ नहीं चला पाते हैं, कुछ दिन का ब्रेक चाहिए होता है। तो या सो आई रिमेंबर दिस कि आई यूज्ड टू ऑलवेज डिवाइड इट, टाइम ना पहले से डिवाइडेड रहता था। सो इट्स अ 3 hour पेपर। सो फॉर मी अब एथिक्स में क्या है ना, देखो बाकी सब्जेक्ट्स में जीएस में व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, ये सेक्शन बी है 15 मार्क वाला, दैट आई विल डू इन से 1 hour 45 minutes। ठीक है, बहुत ज़्यादा खिंच गया तो 2 घंटे भी दे सकते हैं सेक्शन बी को, और सेक्शन ए वो जो 10 क्वेश्चन है वो 100 मार्क रहता है पूरा, उसको 1 घंटे में कर लेंगे। बट आइडियल फॉर मी वाज 1 hour 15 minutes, वो काफ़ी सेफ चलता है। बट एथिक्स में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज केस स्टडी भी उतने मार्क्स की जितने मार्क्स का सेक्शन ए है। सो यहाँ पे बेस्ट ब्रेक डाउन आई यूज्ड टू डू वाज 1.5 घंटे में केस स्टडी करेंगे या 1 hour 35 minutes, एंड बाकी टाइम ना सेक्शन ए को देंगे। सेक्शन ए भी काफ़ी उसमें सोचना पड़ता है। एंड दिस वन टाइम आई रिमेंबर, अब तो सेक्शन ए के क्वेश्चन कितने बड़े आते हैं, वो खुद ही एक पैराग्राफ की तरह होते हैं। सो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते कई बार, वो देखते हैं कि पहला तो कॉन्टेक्स्ट से वो छोड़ो, ये बताओ पूछा क्या है, वो उतना ही लिखना है। सो उसमें टाइम मैनेजमेंट पहले ही घर पे प्रैक्टिस करनी है कि 1.5 घंटे में केस स्टडी कैसे भी खत्म करनी है। ठीक है, एंड हाउ विल यू बी एबल टू डू दैट? ओनली व्हेन यू हैव दिस प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर, जैसे आई थिंक मोस्ट पीपल हैव इट। हमें पता होता है केस स्टडी आएगी, पहले एक इंट्रोडक्शन की लाइन लिख देंगे, दिस डील्स विद दीज काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज, एंड देन हमें पता है कि हम 3 ही ऑप्शन देंगे, और उसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल एक्सट्रीम अच्छा होगा, दूसरा बिल्कुल ही एक्सट्रीम बुरा होगा, तीसरा एक बैलेंस्ड होएगा। तो उसमें फिर ये होता है कि व्हेन वंस दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड, तो आपको ऑप्शन सोचने में भी टाइम नहीं लगता कि आपको पता है पहला वाला सुपर अच्छा बनाना है, दूसरा ऐसा, तो आप काफ़ी जल्दी वो पैरामीटर को क्रॉस कर लेते हो। बट नाउ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन अ डिफरेंट स्केल ऑल्सो। कई बार तो 5-5 सब हेडिंग्स होती हैं एथिक्स के अंदर ही, तो थोड़ा सा आपको भी लेके चलना पड़ेगा, मतलब कि ठीक है फ्लेक्सिबल भी रहना है, जो पूछा है उसको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। और कभी कभी थ्योरी पार्ट में वो बहुत सिंपल क्वेश्चन जानबूझ के लेंदी क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप ज़्यादा लिखते रहो। अगर आपने टाइम फॉर एग्जांपल थ्योरी में ज़्यादा दे दिया, तो इसका इम्पैक्ट केस स्टडी पे पड़ेगा, बिकॉज केस स्टडीज बड़े हैं, तो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, एंड देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग समथिंग। राइट, यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। Now, how GS score contributed to your journey, first, and secondly, what advice you want to give to the aspirant, which we have not covered? See, I used to watch these topper talks on GS score. वही होता है, because when you just start, तो you need to have a base कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है समझने के लिए, या कौन कौन सी बुक्स ज़्यादातर लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, तो यू हैव टू हैव सम आइडिया। ऑल्दो बाद में यू कैन चेंज इट, यू कैन ऐड ऑन, बट एक छोटा सा जो रिसोर्सेज का आइडिया रहता है, तो फॉर दैट GS score was very helpful. And then you have those current affairs etc. also. So those also I used to watch. And other than that, you ask me what I have to say to other aspirants. There's a very simple Suppose message. if there is a aspirant, they are deciding to pursue the civil services. Yes. So what is the advice by you? Because now you're the role model for them. Okay, so I have a very simple message, and that is, when you start preparing, don't be in a hurry. Please take your time. क्योंकि ना जब हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं ना, तो हमारा बेस नहीं बनता। हमने सब कुछ इतना ऊपर से पढ़ लिया होता है कि उस साल तो सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए भी वील बी इन दिस टाइम क्रंच। तो अगर आपको पहले एग्जाम अटेम्प्ट से पहले 1 से 1.5 साल भी लग जाता है टू कवर एवरीथिंग नाइसली, सो टेक दैट। और एक बार बेस बन गया ना, सो इफ यू रिमेंबर आई हैड सेड कि इस बार प्रीलिम्स में 5 ही दिन थे, वो 5 दिन में मैंने तो बस अपने आप को थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि MCQ के हैबिट में आ जाऊं।
बट वो बेस पहले से बना हुआ है, हम्म, तभी जाके वो पेपर निकला है। हम्म, तो वही है कि आपके बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, वो जो फंडामेंटल्स है ना, यू ओनली हैव टू गिव टाइम टू दैट, कि वो मेरे बढ़िया से बन जाए, क्योंकि उसके बाद यू वंस यू स्टार्ट द साइकिल यू विल नेवर हैव टाइम। इवन द फर्स्ट टाइम दैट आई गेव इंटरव्यू, उसके बाद भी देयर वाज 1 वीक ओनली नेक्स्ट एग्जाम से पहले, और एक बार प्री क्लियर हो जाता है तो प्री एंड मेंस के बीच में यू ओनली मोस्टली फोकस ऑन द ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल तो प्री से पहले पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप जीएस नहीं पढ़ पाते हो ठीक से। तो वो सब ना, मतलब इतना बढ़िया लेके चलो, इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके चलो कि आंसर में यू आर एबल टू राइट व्हाट इज आस्क्ड, क्योंकि बहुत इजीली स्ट्रक्चर हो जाएगा आंसर इफ यू हैव अ नाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हो सकता है कि वो एकदम लास्ट पे डेटा वगैरह याद करना पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं पढ़ सकते उस 3 महीने में, absolutely. आप पढ़ ही नहीं सकते, आप रिवाइज भी नहीं कर सकते जीएस को पूरा, तो इसलिए यू हैव टू स्टार्ट। That's a very good advice. And obviously, you did, I mean, you have lots of quality, and that is why you got the All India rank 186, 33. But if suppose a time machine is given to you, Okay. and you have to go back to the. So, what are the important mistakes that you think you will avoid it? I think that if there's anything that I would like to, do in a different way, and then it'll be the way I did my optional. Because I took an optional that was a little different from my graduation subject. So, like I said, कि optional, हर optional की एक ना नब्स होती है, वो आप कभी भी एज एन आउटसाइडर नहीं पकड़ सकते, है ना। आपको नहीं पता कि उस सब्जेक्ट में जब कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉलेज टीचर्स जो हैं वही उसको मोस्टली इवैल्यूएट कर रहे होंगे, तो वो लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में। अब मुझे ये तो पता चल गया अच्छे से कि कैसे जो है ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड इन दैट डिसिप्लिन, वो तो वही बता पाएगा जो उस डिसिप्लिन से है। 10 पॉइंट आते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा पॉइंट आना चाहिए, वो, हाँ, दैट प्रायोरिटाइजेशन हैपेंस ओनली वंस यू आर इन दैट डिसिप्लिन फॉर वेरी लॉन्ग। सो आप ऑप्शनल्स तो आप कोई भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया, से आपने स्कोरिंग वाला ले लिया या आपने कोई बहुत पॉपुलर ले लिया जिसके सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट अनलेस यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द इनसाइड इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स देयर। So I think if I could go back, maybe I would have tried to understand this sub-discipline a little bit better. थोड़ी सी help पहले ही ले ली होती. Okay. That is also important. Okay, so this is all about Dr. Ritika, and Dr. Ritika, as I said, very inspiring personality for many of us, for the aspirant, and obviously you made your parent proud, you made us proud, and I hope many of the aspirant, they will be definitely proud of you. On that note, thank you, Ritika, for giving your time to us. Thank you, so sir. much.